Hi, I'm Neeraj Kukureja. Welcome to the world of Adda 247. Today we are going to discuss basic concepts of unit digit. So first of all, what is unit digit? If I talk about unit digit यानी कि इकाई अंक. Suppose if I take a number 127, so 7 is a unit digit of this number. यानी कि 7 जो है इकाई अंक है. अब अगर मैं बात करूँ व्हाट इज यूनिट डिजिट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यूनिट डिजिट जो है लास्ट डिजिट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यूनिट डिजिट इज द फर्स्ट डिजिट. और व्हाट आई कैन से, whenever you divide any natural number by 10, whatever be the remainder is the unit digit. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 127 की यूनिट डिजिट, सो 127 को जब 10 से डिवाइड करा गया, सो रिमाइंडर इज 7, सो यूनिट डिजिट इज 7. सो नाउ हाउ दिस is basically tested in our exam. Suppose a question is, I have to find the unit digit of 127 plus 129 plus 131. So if I have to calculate unit digit of some given expression and the numbers are added in this, so what I have to do, I don't have to add all the given numbers, I have to just add their unit digits. So that is 7 plus 9 plus 1. 7 plus 9 is 16, so unit digit is 6. 6 plus 1, 7. सो यूनिट डिजिट इज 7. सो जब बेसिकली नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी यूनिट डिजिट्स को ऐड कर देते हैं और वो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, दैट इज 7. यानी कि अगर नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यूनिट डिजिट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एज वेल एज इट कैन बी मल्टीप्लाइड. सो आई टेक वन एग्जाम्पल ऑफ ऑल. Suppose 123 multiplied by 125 multiplied by 127. Now I have to calculate the unit digit of this expression. So 3 into 5 is 15, 5. So 5 sevens are 35. So unit digit is 5. Suppose number is 763 whole square minus 242 whole square. And I have to find the unit digit. So 3 square is 9 and 2 square is 4. So 9 minus 4 is 5. So unit digit of this expression is 5. So अगर numbers ऐड हो रहे हैं तो हम unit digit को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. बट सपोज अगर मैं यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर रहा हूँ और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन कभी भी नेगेटिव आंसर आ जाए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 581 होल स्क्वायर माइनस 367 होल स्क्वायर, एंड आई हैव टू कैलकुलेट यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. There are two approaches. Either I can use a square minus b square, that is a minus b into a plus b, or what I can do, 1 square is 1, 7 square is 49, so unit digit is 9. 1 minus 9 is minus 8. But unit digit can never be negative. Unit digit can never be negative. So whenever we get a negative unit digit, what we do, we add 10 to this number. So minus 8 plus 10, that is what? So 2 is the answer. Why 2 is the answer? Why we add 10? What is the reason behind this? Because 581 square is a big number which ends on 1. Which ends on 1. Similarly, 367 square is a big number which ends on 9. Whenever we subtract these two numbers, 1 minus 9, तो 1 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, तो हम 7 वाली डिजिट से कैरी लेते हैं, और जब कैरी मिलता है तो दैट इज 10. सो 10 प्लस 1 दैट इज 11. 11 माइनस 9 इज 2. सो दैट्स व्हाई आंसर इज 2. So whenever you get a negative unit digit, add 10 to that number to make it positive. So जब भी इकाई अंक ऋणात्मक होगा यानी कि नेगेटिव होगा, हम उसमें 10 जोड़ के उसे धनात्मक बना देंगे. So answer is 2. Now suppose question is like this. I have to find the unit digit of 2 to the power 473. So this number is basically 2 into 2 into 2. How many times? 473 times. सो फॉर दीज टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन जहाँ पर एक्सपोनेंट्स की बात होगी यानी कि घात आ रही है किसी नंबर की, तो हम क्या करते हैं, वी यूज वन कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज साइक्लिसिटी. सो कंसेप्ट होता है साइक्लिसिटी यानी कि चक्रीयता. व्हाट इज दिस कंसेप्ट? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज फर्स्ट डे इज मंडे, सेकेंड इज ट्यूजडे, थर्ड इज वेडनेसडे, फोर्थ इज थर्सडे, fifth is Friday, sixth is Saturday, and seventh is Sunday. Again, eighth day is Monday, ninth is Tuesday, so on. So
here there is a cycle of 7 days. After 7 days, again Monday comes. So if somebody asks me, what is the 100 day? 100 day. तो 100वां दिन क्या है? तो हम ऐसे नहीं चेक करेंगे पहला मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, सो ऑन, 7 संडे, 8 मंडे, 9 ट्यूसडे. सो हम करते क्या है, क्योंकि हमें पता है 7 की साइकिल है, 7 की साइक्लिसिटी है. सो व्हाट वी डू, अगर मुझे 100 डे पता लगाना है तो मैं क्या करता हूँ, 100 को 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 इज लेफ्ट. तो अगर 2 बच गया, इट मीन्स व्हाट, कि जब मैंने 100 को 7 से डिवाइड करा, 14 साइकिल्स कंप्लीट हो गए, 14 वीक्स कंप्लीट हो गए, 2 दिन बच गए. सो फर्स्ट इज मंडे, सेकंड इज ट्यूसडे. सो आई कैन से 100 डे इज ट्यूसडे. सो हम करते क्या है, हमें पता है साइकिल 7 की है, तो हमने जो भी दिन हमें पता लगाना था उसको 7 से डिवाइड करा, जो भी रिमाइंडर आया, अगर रिमाइंडर 1 आता तो आंसर इज मंडे, रिमाइंडर 2 आएगा तो आंसर इज ट्यूसडे, रिमाइंडर 3 है तो आंसर इज वेडनेसडे, सो ऑन. अगर रिमाइंडर 6 आया तो आंसर इज सैटरडे. बट अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0, तो आंसर वो होगा जहां पर पैटर्न एंड करता है, जहां पर पैटर्न एंड करता है. सपोज इफ आई टेक वन एग्जांपल, अगर मेरे से पूछा जाए 35th डे कौन सा होगा, 35वां दिन क्या होगा, मैंने 35 को 7 से डिवाइड करा, 7 5 जा 35, सो रिमाइंडर इज 0. अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर इज जहां पर हमारा पैटर्न एंड हो रहा है, सो आंसर इज संडे. सो 35th डे इज संडे. सो हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिनेरियोज. बट अभी हम ये समझेंगे कि ये कंसेप्ट यूनिट डिजिट में कैसे यूज होता है. नाउ सपोज अगर मेरे को किसी भी नंबर की कुछ पावर का यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना, सो हाउ आई विल कैलकुलेट. सपोज क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power some number. So if I check, 2 to the power 1 is what? 2. 2 to the power 2 is what? 4. 2 to the power 3 is 8. 2 to the power 4 is 16. But here I am concerned only with the unit digit, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ इकाई अंक से है, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहा हूँ. 8 का डबल 16, 16, तो 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 का डबल 12 का 2, सो 2 to the power 5 का यूनिट डिजिट विल बी 2, फिर 2 का डबल 4, सो 2 to the power 6 का यूनिट डिजिट इज 4. सो यहाँ पर अगर मैं चीज ऑब्जर्व करूँ कि जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, 2 4 8 6 फिर 2, यानी कि यूनिट डिजिट हर 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है. यूनिट डिजिट हर 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है. सो आई कैन से कि 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 6, और अगेन वापस रिपीट हो गया 2. सो अगर मेरे से कभी भी कोई पूछेगा कि 2 की पावर 47 की यूनिट डिजिट क्या है, तो मुझे करना क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जो साइक्लिसिटी है, चक्रीयता है 4 4 4 के बाद चीज रिपीट हो रही. सो मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा. मैंने 47 को 4 से डिवाइड करा एंड आई हैव टू फाइंड द रिमाइंडर. जब 47 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 3, सो आंसर इज 8. सो जब 47 को 4 से डिवाइड करा, 47 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज 3. सो यूनिट डिजिट जो होगी 2 की पावर 3, सो 2 की पावर 3 पे आंसर इज व्हाट, 8. सो यूनिट डिजिट इज 8. सो 2 to the power 47, यूनिट डिजिट इज 8. सो कभी भी अगर मुझे 2 की पावर की यूनिट डिजिट निकालनी है, सो माय कंसेप्ट इज व्हाट आई हैव टू डू, I have to divide the power by 4. Why I am dividing by 4? Because cyclicity is 4 in case of powers of 2. Cyclicity is 4. So I have to divide power by 4. If remainder is 1, then I have to consider first power. If remainder is 2, second power. If remainder is 3, then I have to consider third power. And if remainder is 0, I have to consider the fourth power. If remainder is 0, then I have to consider the fourth power. So I take one example in which all the 4 scenarios will be discussed. Suppose first example, I have to find the unit digit of 2 to the power 43. Second, I have to find the unit digit of 2 to the power 48. Third, I have to find the unit digit of 2 to the power 74. Next, I have to find the unit digit of 2 to the power 77. अगर मेरे को 2 की पावर 43 का इकाई अंक निकालना है, 2 to the power 43 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो पावर को 4 से डिवाइड करूंगा. जब 43 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 3, सो 2 to the power 3 इज व्हाट, 8. सो आंसर इज 8. 2 to the power 48, अगर मुझे 2 to the power 48 का यूनिट डिजिट निकालना है, 48 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 0, एंड इफ रिमाइंडर इज 0, आंसर इज 6. सो यूनिट डिजिट इज 6. 2 to the power 74, अगर मेरे को 2 की पावर 74 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर इज 2, एंड 2 to the power 2 इज व्हाट, 4. सो आंसर इज 4.
2 to the power 77, अगर 2 to the power 77 का यूनिट डिजिट निकालना है तो 77 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 1 एंड 2 to the power 1 इज व्हाट 2, सो यूनिट डिजिट इज 2. सो कभी भी अगर मुझे 2 की पावर में यूनिट डिजिट निकालनी है, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिवाइड द पावर बाय 4. इफ रिमाइंडर इज 1, आंसर इज 2. इफ रिमाइंडर इज 2, आंसर इज 4. इफ रिमाइंडर इज 3, आंसर इज 8. एंड इफ रिमाइंडर इज 0, आंसर इज 6. 6 इसलिए क्योंकि पैटर्न 6 पे एंड कर रहा है. नाउ विल सी द साइक्लिसिटी ऑफ डिफरेंट नंबर्स. जैसे 2 के केस में पावर्स 4 के बाद रिपीट कर रही थी, सो हम बोल रहे थे 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट इज 2, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट इज 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट इज 8, 2 to the power 4 यूनिट डिजिट इज 6, 2 to the power 5 यूनिट डिजिट इज 2. सो साइक्लिसिटी इज ऑफ 4 क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रही. 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, सो यूनिट डिजिट इज 7. तो हम 7 ले रहे हैं. अब जब नेक्स्ट पावर होगी तो हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21. फिर नेक्स्ट पावर के लिए फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, सो पैटर्न रिपीट हो गया. तो 3 के केस में भी साइक्लिसिटी इज ऑफ 4. सो कभी भी 3 की पावर की यूनिट डिजिट निकालने, अगेन मैं पावर को 4 से डिवाइड करूं. अगर रिमाइंडर 1 आया तो आंसर इज 3, रिमाइंडर 2 आया तो आंसर इज 9, रिमाइंडर 3 आया तो आंसर इज 7, एंड इफ रिमाइंडर इज 0 देन आंसर इज 1. इन केस ऑफ पावर्स ऑफ 4, 4 to the power 1 is 4, 4 to the power 2 is 6, 16 का 6, 4 की पावर 3, 6 4 जा 24. इन केस ऑफ 4, 4 के केस में पावर 2 के बाद ही रिपीट हो रही, यानी कि यूनिट डिजिट 2 के बाद रिपीट हो रही. सो 4 के केस में साइक्लिसिटी इज 2. हमें पावर को 2 से डिवाइड करना है. अगर 1 बचेगा तो 4, अगर 0 बचेगा तो 6. और व्हाट आई कैन से कि अगर 4 की पावर ऑड हुई, ऑड यानी कि विषम संख्या, सो यूनिट डिजिट इज 4. अगर 4 की पावर इवन हुई यानी कि सम संख्या, देन यूनिट डिजिट इज व्हाट 6. यानी कि अगर 4 की कोई भी पावर ऑड, कोई भी पावर इवन, यानी कि पावर यहां पर अभी हम कंसिडर करें नेचुरल नंबर. अगर पावर ऑड हुई देन यूनिट डिजिट इज 4, पावर इवन हुई यूनिट डिजिट इज व्हाट 6. 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 2 इज 25, अगेन यूनिट डिजिट इज 5. सो इन केस ऑफ 5 यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5. इन केस ऑफ 6, 6 to the power 1 is 6, 6 to the power 2 is 36, again 6. So in case of 6, unit digit is always 6. Now, in case of 7, if I talk about 7, 7 की power 1 is 7, 7 की power 2 is 49, unit digit is 9, 7 to the power 3, 9 7s are 63, 3, 7 to the power 4, 3 7s are 21, 1. Next power 1 7s are 7. तो यहां पर पैटर्न रिपीट हो गया, यानी कि 7 के केस में साइक्लिसिटी इज 4. यूनिट डिजिट 4 के बाद रिपीट हो रहा है, यानी कि 7 की कभी भी कोई पावर होगी तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे. इफ रिमाइंडर इज 1, आंसर इज 7. इफ रिमाइंडर इज 2, आंसर इज 9. इफ रिमाइंडर इज 3, आंसर इज 3. एंड इफ रिमाइंडर इज 0, देन आंसर इज 1. सो 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करा जाए, बिकॉज साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज ऑल्सो 4. 8 की पावर 1 इज 8, 8 की पावर 2 इज 4, 8 to the power 2 is 64, so unit digit is 4. नेक्स्ट पावर के लिए 4 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 32 का 2, 8 की पावर 4, 2 8 जा 16 का 6. नेक्स्ट पावर के लिए 6 8 जा 48 का 8. सो यूनिट डिजिट कितने के बाद रिपीट हो रही है, अगेन 4 के बाद. तो पावर को 4 से डिवाइड करा जाएगा. अगर रिमाइंडर 1 आया तो 8, रिमाइंडर 2 आया तो 4, रिमाइंडर 3 आया तो 2, अगर रिमाइंडर 0 आया देन आंसर इज 6. इन केस ऑफ 9, 9 की पावर 1 इज 9, 9 की पावर 2 is 81, 1, 9 की पावर 3 is 9. सो यूनिट डिजिट 2 के बाद रिपीट हो रही है, 2 के बाद रिपीट हो रही है. तो ये वही 4 की तरह केस है, जैसे 4 में भी 2 के बाद रिपीट हो रहा था, 9 में भी 2 के बाद रिपीट हो रहा है. सो आई कैन से कि अगर 9 की पावर ऑड होगी यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 9, 9 की पावर इवन होगी यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 1. पावर शुड बी अ नेचुरल नंबर. 9 की पावर ऑड यूनिट डिजिट विल बी 9, 9 टू द पावर इवन यूनिट डिजिट विल बी 1. सो जो पॉइंट हमने डिस्कस करा, अगर उसको मैं सम अप करूं तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि इन केस ऑफ 2, 3, 7 एंड 8 साइक्लिसिटी इज 4, जो चक्रीयता है 4, पावर 4 के बाद रिपीट हो रही है. इन केस ऑफ 4 एंड 9 साइक्लिसिटी इज 2, पावर 2 के बाद रिपीट हो रही है. बट इन केस ऑफ 5 एंड 6 साइक्लिसिटी इज 1. 5 की कोई भी पावर है वो हमेशा 5 ही रहता है, 6 की कोई भी पावर है यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहता है. सिमिलरली इन केस ऑफ 0 एंड 1 ऑल्सो, बिकॉज इफ अ नंबर एंड्स ऑन 0, उसकी आप कोई भी पावर लो यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 0.
Similarly, if a number ends on 1, उसकी कोई भी पावर ली जाए जो कि नेचुरल नंबर है, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 1. सो आई कैन से कि अगर 2, 3, 7, 8 है तो उसकी साइक्लिसिटी इज 4, 4 and 9 है, साइक्लिसिटी इज 2, 0, 1, 5, 6 है, साइक्लिसिटी इज 1. But in case if you forget the cyclicity of any number, what you can do, as we know that कि कुछ numbers हैं जिनकी cyclicity 4 है, कुछ numbers हैं जिनकी cyclicity 2 है, कुछ numbers हैं जिनकी cyclicity 1 है. So there is one concept which is concept of mother cyclicity, जो ये कहता है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 4-4 के बाद रिपीट हो रही है, यहाँ यूनिट डिजिट 2-2 के बाद रिपीट हो रही है, और यहाँ यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहती है. तो यहाँ हमेशा सेम रहती है, यहाँ 2-2 के बाद रिपीट होती है, यहाँ 4-4 के बाद रिपीट होती है. तो LCM of 1, 2 and 4 is 4, यानी कि 4-4 के बाद सबकी यूनिट डिजिट रिपीट होगी. सो आई कैन से कि कभी भी कोई नंबर आएगा, उसकी कोई भी पावर होगी, एंड आई हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट. व्हाट आई विल डू, मैं पावर को हमेशा किससे डिवाइड करूंगा, 4 से. अगर रिमाइंडर 1 आया तो फर्स्ट पावर, रिमाइंडर 2 आया तो सेकेंड पावर, रिमाइंडर 3 आया तो थर्ड पावर, एंड इफ रिमाइंडर इज 0 देन फोर्थ पावर. तो आप इसका यूज कर सकते हो. अगर इनकेस आप साइक्लिसिटी भूल जाते हो तो आप हर बार पावर को किससे डिवाइड करो, 4 से, एंड कैलकुलेट द रिमाइंडर. एंड इफ रिमाइंडर इज 1, यूनिट डिजिट इज फर्स्ट पावर, रिमाइंडर इज 2, सेकंड पावर, unit digit remainder is 3, third power, and if remainder is 0, fourth power. Now I take some basic examples on this. Now suppose I have to calculate unit digit of 3 to the power 647. To calculate unit digit of 3 to the power 647, my basic concept is I have to consider this 3, and in case of power, because we know that mother cyclicity is 4, कोई भी पावर होगी, मुझे पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से. अगर मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है तो पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना होता, बिकॉज 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिवाइड ओनली लास्ट 2 डिजिट्स, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स बाय 4. सो 47 को कंसिडर कर, यानी कि मुझे पूरी पावर को कंसिडर नहीं करना, आई हैव टू कंसिडर ओनली 3 to the power 47, एंड आई विल डिवाइड 47 by 4. 47 by 4, remainder is 3, so answer is 3 to the power 3, and 3 to the power 3, 27, so unit digit is what, 7, so answer is 7. So 3 to the power 3, unit digit is 7. Now suppose number is 5734 to the power 6918, and I have to find the unit digit of this number. While calculating unit digit of any number, what I have to do, I have to consider only the unit digit of that number. So my concern is with only digit 4. And in case of power, my concern is with only last 2 digits. So एक तो हमने concept ये समझा कि कोई भी power होगी, मैं power को 4 से divide कर दूँगा. 18 divided by 4. 18 divided by 4, remainder is 2. So 4 to the power 2, unit digit is what? 6. So answer is 6. और what I can do, जैसे मैंने देखा 5734, unit digit तो 4 थी, और पावर है 6918. हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था कि अगर 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 6, बिकॉज इन केस ऑफ 4 and 9 हम पावर इवन और ऑड से यूनिट डिजिट बता सकते हैं. यहाँ 4 की पावर इवन है, सो 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट इज व्हाट, 6. नाउ वी डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स. फर्स्ट क्वेश्चन, suppose I have to find the unit digit of 2 to the power 323 plus 3 to the power 323. अगर मुझे इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा कंसर्न है 2 से, पावर में 23 से. सो दिस इज 2 to the power 23 प्लस 3 to the power 23. अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना. 23 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 3, एंड 2 to the power 3 इज व्हाट, 8. यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, 23 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 3, 3 to the power 3 is what, 7, 8 plus 7, that is 5, so unit digit is 5. Now the next question, second question is, suppose I have to find the unit digit of 3 to the power 575 minus 2 to the power 575. If I have to find unit digit of this expression, what I have to do, I have to consider last 2 digits of powers of 3, that is 3 to the power 75 minus 2 to the power 75.
अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, और 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट इज 7. यहाँ पर पावर को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 3, सो 2 to the power 3 इज 8 एंड 7 minus 8 इज व्हाट, -1. बट हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव होगी सो विल ऐड 10 टू मेक इट पॉजिटिव. सो -1 आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी व्हाट, 9. व्हाई? बिकॉज 3 to the power 575 इज अ वेरी बिग नंबर which ends on 7. Similarly, 2 to the power 575 is a big number which ends on 8. And when we subtract these two numbers, तो 7 में से जब आप 8 माइनस करते हो, इस डेट से कैरी मिलता है, this is 17 minus 8. So that is what? 9. So unit digit is what? 9. Now, the most common question, although it is a simple question, but this is the most common question which is asked in exam. Suppose there is a expression A which is 574 to the power 693 multiply by 748 to the power 513 multiply by 376 to the power 593, and I have to find the unit digit of this expression. अगर इस तरह के कोई एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकालनी है तो मुझे पूरे नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ पे मेरा कंसर्न सिर्फ 4 से, पावर में कंसर्न 93 से. सो 4 की पावर 93, एंड आई नो दैट कि जब 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट इज व्हाट, 4. यहाँ पर कंसर्न सिर्फ 8 से और पावर में 13 से, सो पावर को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 1. 8 to the power 1 is 8. 6 की कोई भी पावर हो, आंसर इज ऑलवेज 6. सो 4 8 जा 32 का 2, 2 6 जा 12, सो यूनिट डिजिट इज व्हाट, 2. आंसर इज 2. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. Suppose if I take number B, which is 9 to the power 45 to the power 46. I have to find the unit digit of this expression. So we know that जब भी पावर की पावर होता है और ब्रैकेट लगा होता है तो पावर मल्टीप्लाई होती है. So this is 9 to the power 45 multiplied by 46. And odd multiplied by even is always an even number. Odd multiplied by even is always an even number. So I can say this is 9 to the power even. और जब भी पावर इवन होती है 9 के केस में, रिमेन यूनिट डिजिट इज व्हाट, 1. बिकॉज 9 की पावर इवन में यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 1. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. बिफोर स्टार्टिंग विद द फिफ्थ क्वेश्चन एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं एक्सपोनेंट का. जब मैं बोलता हूँ 2 to the power 3 to the power 4, लेट दिस नंबर इज A. 2 to the power 4 to the power 3, लेट दिस नंबर बी B. एंड नंबर 2 to the power 3 ब्रैकेट लगा हुआ है 4, दिस इज C. सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये तीनों नंबर्स अलग अलग नंबर्स हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है, वो इन 3 नंबर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 नंबर्स? जब भी 2 to the power 3 ब्रैकेट लगा होता है और पावर 4 होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज 2 to the power 12, 3 4 जा 12. जब भी पावर की पावर होती है पहले ये पार्ट सॉल्व होता है, 4 to the power 3. एंड व्हाट इज 4 to the power 3? 4 into 4 into 4, दैट इज 64. सो दिस इज 2 to the power 64. 2 to the power 3 to the power 4, पहले ये सॉल्व होता है 3 to the power 4. So this is 2 to the power 81. So all these 3 numbers are distinct, अलग अलग numbers हैं. ये नंबर 2 to the power 81 है, ये नंबर 2 to the power 64 and this is 2 to the power 12. So अगर मैं बात करूँ जब भी ब्रैकेट लगा होगा पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, जब भी पावर की पावर होगी पहले ये सॉल्व होगा. So 2 to the power 64, 2 to the power 3 to the power 4, so this is 2 to the power 81. जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ. सपोज आई हैव टू कंपेयर 2 नंबर्स एंड इफ आई आस्क यू कि 2 नंबर्स है P एंड Q. दिस इज 2 to the power 5 to the power 2 एंड दिस इज 2 to the power 2 to the power 5. सो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? दिस नंबर इज 2 to the power 5 to the power 2. पहले ये सॉल्व होगा. 5 to the power 2 इज व्हाट, 25 and 2 to the power 5 is what, 32. So these two numbers are distinct and Q is greater than P because ये 2 की पावर 25 है, ये 2 की पावर 32. Now अगर क्वेश्चन आता है कि 2 to the power 5 का यूनिट डिजिट बताओ. So this number is what, 2 to the power 32. And if I have to calculate unit digit of this number, I have to divide the power by 4. अगर पावर को 4 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट वो होती है जो 4th पावर की होती है. एंड 2 to the power 4 is what, 6. So answer is 6. But if I have to calculate unit digit of 2 to the power 5 to the power 2, what is 2 to the power 5 to the power 2? 5 to the power 2 is 25. So this is 2 to the power 25. और अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर को 4 से डिवाइड करा जाएगा.
25 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 1. So answer is 2 to the power 1. That is what? 2. So unit digit of 2 to the power 5 to the power 2 is 2. Now, suppose question number 5. C is 9 to the power 23 to the power 24. What is the unit digit of this expression? 9 to the power 23 to the power 24. If I have to calculate unit digit of this expression, power is what? 9 to the power 23 to the power 24. So this is odd to the power even. And we know that odd to the power even is always odd. So 9 to the power odd, answer is what? 9. So unit digit is 9. But if I ask you 9 to the power 24 to the power 23, this is what? 9 to the power even ki power odd. And even ki power odd is always even. So I can say 9 ki power even. And unit digit of 9 ki power even is what? 1. So answer is 1. Answer is 1. Now, कभी कभी क्या होता है कि मेंस का क्वेश्चन अगर फ्रेम करा जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करा जाएगा और उसमें इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करा जा सकता है. पावर टू द पावर, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. क्वेश्चन 6, सपोज नंबर f is 9 to the power 23 to the power 24 to the power 25 to the power 26, so on, 10,48,576. And I have to calculate unit digit of this expression. So this is a very simple question. What I can say, this number is 9, 23 is an odd number, and odd raised to the power any number. Odd raised to the power any number is always odd. So this is 9 to the power odd. And unit digit of 9 to the power odd is what? 9. So answer is 9. Answer for this question is 9. Similarly, the concept of unit digit can be used in factorials. Suppose if I take one example, question number 7, if I take an expression p which is 1 factorial to the power 1 factorial plus 2 factorial to the power 2 factorial plus 3 factorial to the power 3 factorial, so on, 100 factorial to the power 100 factorial, and I have to calculate the unit digit of this expression. Now, हो सकता है क्वेश्चन देखने में लगे कि कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी. जस्ट यू हैव टू एनालाइज कि क्या इसमें एक मेजर पॉइंट है जहाँ से मेरे को आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना. अब फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू इज व्हाट? 1. सो दिस इज 1 टू द पावर 1. 2 फैक्टोरियल इज 2. दिस इज 2 टू द पावर 2. 3 फैक्टोरियल इज 6. 6 टू द पावर 6. And 4 factorial is 24 to the power 24. 5 factorial is 120 to the power 120. So on. 100 factorial to the power 100 factorial. Now, as we know that कि 5 factorial onwards जितने भी नंबर होंगे सबकी यूनिट डिजिट विल बी 0. अब 0 की कोई भी पावर हो, आंसर विल बी 0. सो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स from 120 to the power 120, that is 5 factorial to the power 5 factorial, is 0. So unit digit of all the numbers is 0. Now I have to find the unit digit of only this expression. 1 to the power 1 is 1, 2 to the power 2 is 4, 6 raised to the power any number is always 6, and 4 की power even है, so even पे answer is what? 6. Now if I have to calculate unit digit, 1 plus 4 is 5, 5 plus 6 is 11, 11 का unit digit is 1, 1 plus 6 is what? 7. So unit digit is 7. I am going to discuss how we are different from others. कि जो हम एसएससी का बैच की बात करें, how we are different from others. First thing is number of hours. Number of hours जो हम आपको यहाँ पर provide करेंगे, that will be sufficient for your preparation. Second, the material which is given to you will be, first thing, sufficient. Second, which is more important, is the relevant material which is required for your preparation. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि what they have to prepare. वो प्रिपरेशन एसएससी की कर रहे हैं, बट करते करते वो कैट के क्वेश्चंस पे चले जाते हैं. सो वी हैव टू प्रिपेयर वन स्टेप बियॉन्ड एसएससी बट नॉट कैट. सो वी शुड नो वेयर वी हैव टू एंड आवर प्रिपरेशन. थर्ड थिंग which is very important, to solve question by using different approaches. How I can proceed one question with a different approach. Suppose if I discuss one question with you, I will tell you different methods to proceed the same question. After that, you can decide which method is better for you, so that you get to know
what are the different approaches, and you get to know the clear picture of the question, how they can ask the question in exam. Suppose if I ask you one simple question, there was one question which is asked in SSC, that is to calculate the number of digits in the square root of a 12 digit number. 12 डिजिट का कोई नंबर है, उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं. सो जैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे, हम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे एंड विल सी व्हाट डिफरेंट वेरिएशंस कैन बी क्रिएटेड ऑफ दिस क्वेश्चन. सपोज अभी उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक नंबर है जिसकी 12 डिजिट्स हैं, उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं. विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट डिजिट्स in the square of any number, cube of any number, cube root of any number, or nth root of any number. So we'll see what are the different ways of asking the same question. So we're going to learn these things in our classes. Fourth, which is again very important, to solve question by using only options. Only option. This is very important as far as our exam is concerned, because we say to students that prepare yourself in such a way that you can complete 100 questions of mains in 100 minutes. So options method is very, very important. Next is test and test analysis. Test analysis, which is very, very important for competition, because what I have seen, बहुत सारे students test तो देते हैं, but test की analysis नहीं करते. And test analysis is very important. Giving 20 tests and giving 5 tests with analysis is equivalent. So test analysis बहुत ज़्यादा important है. तो जितने भी टेस्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस होगी, सो दैट यू गेट टू नो कि जब एग्जाम सिनारियो में आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो हाउ यू विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन. कैसे हम क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे, कैसे हम डिफरेंट अप्रोचेज हैं क्वेश्चन की उससे करेंगे. एंड वन मोर थिंग, विल फोकस ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड एज वेल. कैलकुलेशन स्पीड एज वेल, ऑल्दो ये हम अपने स्टार्टिंग के बैचेस से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये ऑब्जर्व करा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर है, बट द प्रॉब्लम इज इन कैलकुलेशन. दे आर वेरी स्लो इन कैलकुलेशन. आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू हैव टू ऐड सम डिजिट्स. आई हैव टेकन वन एग्जांपल 5 7 4 3. आई हैव टू ऐड द डिजिट्स. 5 + 7 is 12. 12 + 4 is 16. 16 + 3 is what? 19. So sum is 19. Suppose अगर मैं कुछ ज़्यादा डिजिट्स लेता हूँ, I have to add these digits 5 8 3 2 9 1 6 7 3 5 8 2 7 1 4 3 7 2 4 5 8 7 6 3 2 9 1 8 4. अब सपोज इस डिजिट्स को ऐड करना, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारे लोग ये ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं. ठीक है, ऑल्दो ये पेपर में कभी नहीं आता, बट कैलकुलेशन स्पीड प्लेज अ मेजर रोल. अगर आप इस तरह की डिजिट्स को ऐड करने की हैबिट में हो तो पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आधा पेपर वैसे ही हो जाता है. सपोज आई हैव टू ऐड दीज डिजिट्स. अगर मैं इसे ऐड करता हूँ, 5 8 13 16 18 27 28 34 41 45 46 53 55 63 68 71 78 86 91 95 97 4 7 13 16 18 27 28 36 40. So that is 140. So this is just a simple case of addition. Similarly, what we can do, we can increase our speed in multiplication, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, बिकॉज अगर ये स्पीड आपकी अच्छी हो गई तो आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी. जैसे सपोज इफ आई टेक वन एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आई हैव टू मल्टीप्लाई 123 मल्टीप्लाई बाय 312. सो व्हाट आई कैन डू बाय यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आई कैन डायरेक्टली राइट 2 3 ज़ा 6, 4 3 7, 2 9 11, 2 13 3, 2 6 8, दिस इज 3. सो आंसर इज 38376. सो ये सारी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि कैलकुलेशन इज नॉट अ बैरियर फॉर यू. So this is all for today. Thank you.